concepts like dowry exist back then? Her husband, her in-laws, anyone else never had any right over that money. He taught 72 arts to men and then he taught women 64 arts. It was so progressive that we thought even about the other genders since then. ये विरासत में मिला है हमें उनसे. There were no feminist texts, nor were there any feminist movements. But I think not many of us know that she was in fact the first person to attain moksha in this half-time cycle. इतने एग्जाम्पल्स होने के बावजूद कुछ संप्रदाय, कुछ पंथ विशेष ऐसे हैं जो मानते हैं कि महिला मोक्ष नहीं जा सकती. Twins were born, they married each other. Wow, so you're telling me the concept of literacy itself came from a woman. So you must have heard of मल्लीनाथ भगवान, our 19th. Tirthankar. तो वो जन्म से स्त्री थे. You know, there was a time where women didn't have to ask for rights. They already had them. Today, we're traveling back in time, from Raja Rishabhdev's era to the world where we live in now. We'll see how Jain philosophy viewed women not as dependents, but as teachers, thinkers, and seekers of truth. From Brahmi, who gave the world its very first language, to Sundari, who taught the world about measurements and mathematics. Their stories remind us how women shaped the roots of this civilization. Welcome to a new episode of Rishabhayan's series, What Equality Looked Like in the World's Oldest Civilization, where we explore how the world's oldest civilization wasn't just about religion, it was about humanity learning to live consciously. Pranam, I'm Diya Nahar, your host, and joining us today is Rishit Jain, a postgraduate in computer science from the University of Southern California. He is an entrepreneur and an independent researcher. He is deeply passionate about Jain philosophy and spends his time researching and reviving forgotten parts of our civilization. So, Rishit, from Raja Rishabhdev's time till today, what has really been the status of women and how did we see women crores of years ago? So, about the status of women, if you just look at it from a logical or even a historical perspective, you will notice that it's the freedom that we talk about in Jainism. It's mostly about how freedom is actually accessible to everyone. That's how freedom is accessible for everyone. That's what we call equality. So if crores of years ago, if you go back crores of years ago, you'll see there were no feminist texts, nor were there any feminist movements, nothing to uplift women. But at that time, we had examples like Marudevi Mata, we had Sumangala ji, Sunanda ji, and then, like you said, Brahmi Sati and Sundari Sati. So such examples show us that people did not feel the need to respect women as a rule. Respect came out naturally. Awesome. So let's start with one of the most beautiful stories and the most oldest story. So we know about Marudevi Mata as the mother of Rishabhdev Bhagwan. But I think not many of us know that she, in fact, a woman, was the first person to attain moksha in this half-time cycle. So what is her entire story? That's a really good topic to start with. So Marudevi Mata is known for her punya and purusharth both. So because she was the mother of the first Tirthankar, she was the wife of the 14th Kulkar, that's Nabi Raja. That is what indicates her punya, that how punyashali she was before she was born as Marudevi. If you just go back in time, just look at some of our texts, you will know that Adinath Bhagwan took Diksha in a time when concepts of sannyas, concepts of Diksha and any such thing, renunciation, I'm not saying they were not popular, they were not known at all. Like people did not even know that these things are part of dharma. Like the dharma that Adinath Bhagwan taught us, that these things were introduced when he became the first monk. So that is when the society, that is when everyone else got to know that there is a path like this. And
since he was the first ascetic, he was the first Muni, or we call him Pratham Munishwar, and he just renounced everything and he went out, and then he was roaming all on his own, not contacting his family, not contacting anyone in the sansar. So, as a mother, what would Marudevi Mata think? She must have been, she must have, stressed. yeah, she must have been very, very worried about him. And then it was also like he was not talking to anyone. The Tirthankars don't speak after they take Diksha. So he was not talking to anyone. So in that situation, he was also not meeting his family. So his mother was very worried about him. Okay, so that would be so difficult for her. Imagine your child leaving your house tomorrow and never ever contacting you. I think any mother, even now, would get so stressed about all of these things. So, what happened then? So, I mean, Marudevi Mata was thinking that there's every convenient that there is in this sansar is available at her palace. So why would he renounce? I mean, Correct. He had all the luxuries in the world. anyone would think so, right? And then Marudevi Mata would always be worried about him before his Keval Gyan. So for all the period that he was roaming as a sadhu before Keval Gyan, all that time Marudevi Mata was only worried about him. Like, that is all that she could think of. That is how she's been portrayed. This is also shown in most of our stavans that are concerning Marudevi Mata. Like, you must have heard a stavan that's called Bol Bol Adeshwar Wala. So in that stavan, there's a line that goes like, देर हुई सो हो गई वाला, बात भले नहीं कीन्ही रे, गया पछे कागद नहीं दीनू, खबरों न लीधी रे. That means Marudevi Mata was telling her son that you left all of us and you did not speak to us, and it has been a while since I've seen you. I am forgiving you for all of that, but you still did not write a letter. Gaya pache kagad nahi dinu means you never wrote a letter, never asked how we were. So she is shown as a very loving mother. She's complaining to her son about not contacting anyone. So, and then one day Marudevi Mata gets news that Adinath Bhagwan has achieved Keval Gyan in a garden nearby. And then she did not know what to do. She thought, my son has come here, I'll go and meet him. That's all she could think of. Like, exactly that's what she could think of. She did not know what Keval Gyan is. She just knew that my son has come here, I have to go there. So then she got on an elephant, and then she moved towards the Samoha Sharan that was organized for Bhagwan's Deshna. That's what happens when Tirthankars achieve Keval Gyan, right? Correct. And while going there, she was completely absorbed in the thoughts of her son. Like, she had only imagined him as a prince when he was with her, as a king when he was with her. And the moment she reaches the Samoha Sharan, all these thoughts just, and when, obviously when she looks at Adinath Bhagwan, at the first instant, all those thoughts just subside. And then she thinks that he left all these possessions. Materialistic things. Yes, he left everything that was materialistic, and now he's sitting there about to preach to people. At that moment, she thought all relationships and everything that is materialistic is so fleeting. The fleeting nature of everything that is materialistic. Even relationships that you have in the sansar, they're also fleeting. They'll end someday, right? Everything has an end. At that moment, we call it anitya bhavna. In Shastras, we call it anitya bhavna. That unhone anitya bhavna bhai, and the moment she thought of that, her attachment from her son grew weaker, and then she just went on to think that I am nothing to him, he is nothing to me. That is what the fleeting nature of relationships signifies.
And at that moment, she achieved Keval Gyan herself while sitting on the elephant. Wow. So, and in the next moment, she achieved moksha. Like she passed away. That's what is said in scholarly works. But we say she achieved moksha. So that is how her story goes. So she in fact achieved moksha before Adinath Bhagwan. Yes, that is how she became the first person to achieve moksha in this half-time cycle. So that is her story. Wow, that's so powerful, from a very worried mother to a liberated soul, and the first liberated soul in the half-time cycle. That's what the first woman had achieved. Yes. So Marudevi Mata, this entire scene, this entire narrative is so popular in our culture that in most of our temples of Adinath Bhagwan, उनमें मरुदेवी माता की एक प्रतिमा होती ही है in most popular temples, and she is sitting on an elephant facing towards the Moolnayak Bhagwan. It is a symbolic way to represent Adinath Bhagwan sitting in the Samovacharan and Marudevi Mata looking at him, and that is the instant when she achieves Keval Gyan and Moksha. If you look at Tirths like Ranakpur, you must have noticed this in Yes. Ranakpur, in Palitana, Yes, yes. in Abu Delwada, and even in Kesariyaji. In fact, for Kesariyaji, this idol has been an important part of the court case that was ongoing for the ownership. So this idol is very much only about how Marudevi Mata achieved moksha. There's no other alternate explanation for that. That is so visually beautiful, and that story tells us so much. So, this story really shows us how universal attachment really is, but realization is equally possible for everyone, whether it be then for Marudevi Mata or even now for women. We are so attached to our family, mothers are so attached to their children, but I think realization of all of these things are equally possible. And at the time where women weren't considered important, there is so much that Marudevi Mata achieved that's incredible. I mean, that's probably where you got it wrong. Women weren't considered important is not true, actually. Okay. If you look at the history, at that time, all that people did was ask for things from Kalpavrukshas. Correct. एंड कल्पवृक्ष उन्हें वो दे देता था जिसकी उन्हें कामना होती थी. वट एवर दे आस्क्ड फॉर द कल्पवृक्ष they just gave it to the people. So nobody had to work. And there was minimal interaction between people with regards to work. So in such a situation, you would not have any basis to consider anyone inferior, right? Yeah. So there was nothing that could be held against women or against men. Everyone was equals. And when Bhagwan established the society later on, even then there were no social norms like that, because there was no need for such norms that women are inferior or men are inferior or men are superior. No such narratives were presented. Like, it was a very simple construct, a very simple society that Bhagwan had established, and people just took whatever they were given. So you're telling me gender roles did not exist at all back then? Not exactly. I mean, gender roles did exist, but it was in a different context than we see it today. So obviously there was no discrimination, but if you had to look at how gender roles existed back then, I'll give you an example. Sunanda ji, her yugal. I mean, yugal marriages were the norm. Could you explain what the yugal concept is? So yugal is exactly how the society worked back then. Twins were born, they married each other, and then the family just continued. Got it. उनसे वंश आगे बढ़ता था, ऐसा. Understood. And then when they always gave birth to yugals. Okay, everyone gave birth to twins, they married each other, and that's how society continued. Yes. And Sunandaji's yugal had died. Yes, he had died. After a palm fruit fell on his head, he died.
at that time, everybody had yugals. What would one do with Sunanda ji, right? The society was worried about her, and in a good way. The society took this problem to Adinath Bhagwan and Nabiraja, and then they asked them that what should be done in this case. Sunanda ka kya hoga? That is what they asked them. And Nabiraja and Adinath Bhagwan thought over it. They found a solution to the problem. And then Adinath Bhagwan agreed to the proposal that the society brought to him, that he should marry her. Okay, so the solution was Adinath Dada would marry Sunanda ji. Yes. So Adinath Bhagwan already had a yugal. Okay. She was Sumangala ji, and then he also married Sunanda ji. The thing is, Sunanda ji's yugal had died by the first accidental death. So there were no accidental deaths before him. So the society actually did not know what to do. And here the matter of more concern is how the society played a role in this. At that time, society was the problem solver. It was the problem solving entity. Now, if you see it, society is the troublemaking entity. He's the one who creates the problems. Yes. So that was not the case back then. The society was very different. The society was good. Much simpler. Yes. And the society walked on the path that Bhagwan showed them. Because before that, the only path they knew was Kalpavruksha. After that, Bhagwan showed them a path. Correct. And then they only walked over that. And Bhagwan did not teach them to be judgmental, to be the troublemaker. So that is why the society was good back then. And with this example, you see how society played a good role in this entire scenario, and then how Sunanda ji got the security any woman would want. Agreed. That's incredible. So, my next question to you is, and this is something I'm really curious about, did concepts like dowry exist back then? No, not at all, actually. Rishabhnath Bhagwan had constructed a civilization, and this was before his Diksha, and after his Diksha in Keval Gyan, all he did was contribute to the society spiritually. He only showed the path to the people, the path to moksha. And before that, he only showed them the how people would fulfill their basic necessities in the absence of kalpavrikshas. So dowry did not make sense and does not make sense in the civilizational sense or in the spiritual sense. So since it has nothing to do with both of these things, we have no reason to believe that Adinath Bhagwan would have introduced any such practice. But what existed was Stridhan, the concept of Stridhan. Stridhan was money, was dravya given to a daughter by her parents upon marriage. And the caveat here is that Stridhan was only owned by that woman. Okay. She took it with her to her in-laws, but her husband, her in-laws, anyone else never had any right over that money or that dravya or whatever money her parents gave her. Nobody else had right over it. That was for her personal expenses. For anything that she found personally fit, she could use that money. And ऐसा नहीं कि husband के business में loss हो गया तो स्त्रीधन यूज़ कर लिया, या इन लॉज के घर में मतलब कोई पैसों को लेकर प्रॉब्लम आ गई तो स्त्रीधन यूज़ कर लिया. नो, स्त्रीधन वॉज एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय दैट वुमन. एंड you also find references to स्त्रीधन in श्री विपाक सूत्र. दैट्स एन आगम सूत्र. उसमें सुबाहु कुमार और उनकी जो जितनी भी शादियाँ हुई थी उनके बारे में जो वर्णन आता है उसमें स्त्रीधन का कंसेप्ट है. उसमें उन लड़कियों के पेरेंट्स उन्हें स्त्रीधन देते थे. सो दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, दिस इज़ नॉट समथिंग मॉडर्न, दिस इज़ ऑल दैट एग्जिस्टेड since ancient times. This is also part of the Hindu culture, basically the Arya Sanskriti. So Stridhan existed, but dowry did not.
Correct. So women were deeply respected but not moralized. Yeah, women were not moralized at that time. Adinath Bhagwan had taught kalas to people. Right. You know that, right? Yes. So at, he taught 72 arts to men, and then he taught women 64 arts. Okay. But you know, some things that men could do efficiently, women couldn't. Correct. And some things that women could do efficiently, men couldn't. What he taught was different for men and women. Okay, so you're not saying that the 64 kalas that women were taught, all of them men were taught plus some additional. You're saying they were taught completely different kalas, and some may have been common, but they were taught different kalas and men were taught different kalas as per what each of them would have been efficient at. Yeah, so I mean, there would have been overlaps, Correct, but of course. because a lot of things were only to fulfill their basic necessities in the absence of Kalpavruksha. Correct. So he taught based on efficiency. He did not look at equality at that time, and there was no need for equality. Everyone would do what they're good at. So in that case, you see, there was no need to moralize women. Wow, so that's a refreshing way to look at it. Not to look at it from just solely an equality perspective, but also think about efficiencies and all of that. Exactly. So you mentioned, and we've also heard in our previous episodes, how Rishabdev Bhagwan built a civilizational path and also a spiritual path. I am curious about who were the women that contributed to this entire system as well. There were a lot of women who contributed to civilization and spirituality both. It's a good time to start with the example of Brahmi Sati. You must have heard about the Brahmi script. It came from her. Adinath Bhagwan taught her. She was the first person to learn alphabets, to learn Oh. the art of writing from Adinath Bhagwan. He Okay. taught her 18 alphabets. So that is what the Brahmi script is, and it is named after her. Wow, so you're telling me the concept of literacy itself came from a woman. Yes, the concept of literacy came from a woman, and even now that you see, we worship Gyan on Gyan Panchami. You must have performed Gyan Puja on Gyan Panchami, right? Yes. And we worship Shrut Devi. Hmm. So knowledge has been personified as a woman here. Okay, correct. And Brahmi ji was also a woman. In texts like Sri Bhagavati Sutra, we actually do namaskar to Brahmi Sati, but also do namaskar to Brahmi Lipi or the Brahmi script. So just think, Brahmi Sati has been given a status at par with Shrut Devi. Some people also worship her when they're worshipping Shrut Devi. If you notice, in a lot of texts, बहुत सारे ग्रंथों में मंगलाचरण में ब्राह्मी जी का नाम होता ही है. शुरू ही उनसे करते हैं क्योंकि ये आर्ट उन्हीं से आई है. The art of writing has originated from Brahmi ji. So Correct. even men who are writing today are indebted to Brahmi ji for giving the art of writing, the alphabets, everything to us. ये विरासत में मिला है हमें उनसे. और सभी को ये चीज़ पता नहीं होती, लेकिन that is what we should be thankful to her for. And what about Sundari ji? I've heard her name pop up every time we're speaking about measurements and numbers. She was the one who introduced all of this, and Raja Rishabdev taught all of this to her first. Yes, so like he taught alphabets and writing and language and literature basically to Brahmi ji, वैसे ही उन्होंने मैथमेटिक्स, मेजरमेंट, वेट्स एंड मेजर्स जो हम बोलते हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें सुंदरी जी को सिखाई थी. एंड दैट इज़ हाउ द ट्रेडिशन ऑफ मैथमेटिक्स गोज़. जैसे ब्राह्मी जी से हमें लिखने का ज्ञान मिला है, वैसे सुंदरी जी से हमें मैथमेटिक्स, मेजर्स, काउंटिंग, नंबर्स, इन सब का ज्ञान मिला है. सो even men and women, everyone today is indebted to Sundari ji for giving us that kind of knowledge. The two most powerful pillars
I think that is language and mathematics both were given by women to the world. Exactly. So they were given by women, they were taught by Adinath Bhagwan, and that is how it came to us. For Sundari ji, I mean, if you see the history, if you look at texts, she performed Ayambil Sadhana for 60,000 years. Oh, So just imagine, she performed Ayambil Sadhana for 60,000 years. And the reason, do you know the reason? no. What? The reason was whenever a person takes Diksha, they have to ask for permission from their family members, right? When Correct. Adinath Bhagwan took Diksha, he asked for permission from his parents. Right. And Sundari ji was married to Bharat Chakravartin Maharaja. So she asked for permission. Bharat Chakravartin Maharaja was a little skeptical at first. Sundari ji took it to mean that this is probably because I look very beautiful, Okay. and that's why Bharat Chakravartin does not want to let me go. And then Sundari ji ने सोचा मुझे मेरे रूप का विनाश करना है, एंड वो सोचकर उन्होंने 60,000 साल आयम्बिल किए. उसके बाद उनकी निष्ठा देखकर ही भरत चक्रवर्ती महाराजा ने बोल दिया कि आप दीक्षा ले लो, मैं परमिशन दे देता हूँ. सो दैट इज़ हाउ वी ऑल्सो हैव अ सुंदरी तप. Other than that, you must have heard of the story when Bahubali ji took Diksha. Yes. The period between his Diksha and Keval Gyan, he did not want to go and जो हमसे बड़े जो मुनि भगवंत होते हैं, हमसे बड़े जो साधु होते हैं, उन्हें वंदन करना पड़ता है. And that is not based on age. That is based on the amount of time they've been in Sayyam. Okay, so whoever's taken Diksha first needs to, the younger people will, उनको वंदन करेंगे वो. Yes. Okay. So बाहुबली जी ने उनके सभी भाइयों में उन्होंने सबसे लास्ट दीक्षा ली थी. Okay. Bharat Chakravartin apart, but everyone else, after everyone else, he was the last person to take Diksha. And he was the eldest as by age. After Bharat Chakravartin, yes. Okay. He did not want to, मतलब उन्हें वंदन करने की इच्छा नहीं हो रही थी. उन्हें हिचकिचाहट हो रही थी कि ये सारे तो मेरे छोटे भाई हैं, मैं उन्हें कैसे वंदन करूं. And at that moment, Adinath Bhagwan knew this. That this is what he is thinking. वो तो केवल ज्ञानी थे. उन्होंने ब्राह्मी जी एंड सुंदरी जी को भेजा उन बाहुबली जी के ईगो को ख़त्म करने के लिए. ब्राह्मी जी एंड सुंदरी जी को भेजा, एंड उन्होंने वहाँ जाकर बाहुबली जी को प्रतिबोध किया. उन्हें एक छोटा सा सरमन दिया जिससे उन्हें रियलाइज़ हो गया कि नहीं, मैं गलत हूँ, मुझे वंदन करना पड़ेगा. एंड जैसे ही वंदन करने के लिए उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, उसी मोमेंट पर उन्हें केवल ज्ञान हो गया. तो आप सोचिए कि ब्राह्मी जी एंड सुंदरी जी में उनमें कितना नॉलेज रहा होगा, उनको कितना नॉलेज रहा होगा कि उन्होंने बाहुबली जी को मतलब एक चीज़ समझा दी. हम ऐसे जब हिस्ट्री में देखते हैं, ही स्टूड फर्मली फॉर हिज सेल्फ रिस्पेक्ट. वो ऐसे जनरली किसी और की बात लेते नहीं थे. ही डिड नॉट एक्सेप्ट एवरीवन्स ओपिनियंस, लेकिन इन्होंने उन्हें कन्विंस किया. Correct. That's such a powerful moment, like two women or two sisters coming together to convince one of the greatest souls to attain enlightenment. Exactly. And this is why Brahmi ji and Sundari ji are very important in our history, not only in the history of Jainism, but in the history of India, in the history of this Arya Sanskriti, this civilization that we have today. So true. I feel those stories have so much to teach us even today. So you spoke about equality existing back then, and something like equality did not even have to be stated, it was already a given. Yes. But how did that change in the society? Because as we see now, if we see history, we speak about what is happening in the world right now, patriarchy has clearly taken over.
So patriarchy has definitely taken over, and this happens in civilizations. They decline with time, and a lot of things happen. Powerful people clutch the power, and then they turn everything to suit their own mindset and motives. But time to time, Jainism has always given reformers to the world. So you must have heard of Mallinath Bhagwan, our Yeah, 19th. 19th Tirthankar. So वो जन्म से स्त्री थे. Okay. Oh, so you're telling me one of our 24 Tirthankars were a woman, and Jainism came to recognize one of the Tirthankars as a woman. Yes. So Mallinath Bhagwan was a woman, and उनका जन्माभिषेक, उनकी स्तुति, जो भी इंद्र स्तुति करते हैं, वो सारी क्रियाएं वैसे ही हुई थी जैसे बाकी सभी तीर्थंकरों की होती है. Okay. And one very starkly different feature about her story is मल्लीनाथ भगवान ने जब दीक्षा ली थी और उन्हें जब केवल ज्ञान हुआ था, उसके बीच का जो पीरियड होता है which is called their sadhana काल, that was less than 24 hours. Okay. So उन्हें सुबह उन्होंने दीक्षा ली और शाम से पहले उन्हें केवल ज्ञान भी हो गया था, और फिर उन्होंने चतुर्विद संघ एस्टैब्लिश किया जैसे सभी तीर्थंकर करते हैं, और उनकी प्रथम देशना में उन्होंने 28 मेल गणधर बनाए थे. दिस इज़ वॉट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन 2500 years old text. It's not written recently. So these things were actually part of our history. आप देखोगे तो मल्लीनाथ भगवान ने दीक्षा से पहले 6 राजाओं को भी प्रतिबोध किया था. वो मल्ली कुमारी थे, तो उन्होंने 6 राजाओं को नॉलेज दिया था. उसके बाद उन्हें वैराग्य हुआ, तब उन्होंने दीक्षा ली थी. Wow, so this is something new. Even the ancient history of Bharat shows how progressive the thinking was. So now when we talk about important women, तब सती की बात आती है. द्रौपदी, सीता जी, चंदन बाला. So ये सब सती क्यों कहलाए? एंड व्हेन वी टॉक कि ये सब इसलिए था बिकॉज ऑफ इक्वालिटी, बट जब सती की बात आती है तब isn't it related to patriarchy again? Not exactly. If you look at the word sati, it stands for someone who is pure. Sati means pure. So if you look at our scriptures, it has been used in a different sense than we know it today. So if you look at the scriptures, you'll see ब्राह्मी जी को भी सती कहा है, सुंदरी जी को भी सती कहा है, चंदन बाला जी को भी सती कहा है. वैसे ही सीता जी, कौशल्या जी, ये सभी सती थे. आप सीता जी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए. जब उनका हरण हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने इतने साल अपने शील की रक्षा की थी, अपनी प्योरिटी की रक्षा की थी. उन्होंने उनके साथ कुछ गलत होने नहीं दिया, तो इसीलिए उन्हें सती कहा जाता है. बट सती का मीनिंग सिर्फ मैरिज के टर्म्स में नहीं है. एनीवन वुड थिंक कि पतिव्रता महिला जो है वो सती है. दैट इज नॉट द ओनली मीनिंग ऑफ सती. सती एक्चुअली स्टैंड्स फॉर समवन हु इज ऑल्सो वेरी एडवांस्ड इन स्पिरिचुअल टर्म्स. ओके. सो स्पिरिचुअलिटी में सीता जी भी बहुत आगे थी, और द्रौपदी जी, ब्राह्मी जी, सुंदरी जी, इन सब का स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत आगे था, इसीलिए उन्हें सती कहा जाता है. इट इज़ नॉट ओनली अबाउट अ वुमन सिटिंग ऑन अ फ्यूनरल पायर विथ a husband who is already passed away. Yeah, because that's the general definition of sati. I think that's commonly known now, and it's strongly opposed. I think even by a lot of Shravak sadhus, everyone, it was strongly opposed. But what you're saying is that is not at all what sati meant. Sati actually stood for women who were very pure in their sadhana, their aradhana, their tapasya, very spiritually advanced. So sati, that word stands for such women. This kind of a reinterpretation, it's only, I mean, we just discussed how civilizations decline, right? So this is a result of that. This kind of a practice was never propagated neither in the Jain Sangh, not even in the Arya Sanskriti. Somehow some bad things creep into civilizations,
So it's Understood. just a part of that. Yeah, so when such strong women were wronged, how did they react to it? Did they fight back, or how did they cope up with the situation? No, like I said, these women were spiritually very advanced. So generally, if you see, they won't fight back. They would just leave it up to the other person's karma. So in that regard, we have. Let me think. We have Kaushalya ji's example, Shri Ram's mother. She was wronged, right? Yes. Asked Dashrath Maharaja, and then he just sent Shri Ram and his family on a 14-year exile. So she was wronged, but Kaushalya ji is also one of the 16 Mahasatis we have in Jainism. And that is exactly because she did not harbor any bad feelings, no negative emotions for Kaikai. So, they were spiritually so advanced. Right. So even I think Draupadi would be such an example, right? And did she not get angry upon her Chirharan and all of those things? Yes, Draupadi could stand for such an example, but not exactly, because she did get angry at Chirharan. That was something that anyone would easily get angry upon. So that was a very serious event, and that is probably why the anger that she harbored is probably why she became a devta and did not exactly attain moksha in the same birth. Maybe that was the reason. Now, if you see, Draupadi was also spiritually very advanced. आगम सूत्रों में तो ऐसे वर्णन आते हैं कि वो रोज़ जिन पूजा करती थी. That was her daily ritual. Like this is an exact excerpt from our आगम सूत्रस. आप देखोगे तो ज्ञाता धर्म कथा नाम है सूत्र का. उसमें ये पूरा वर्णन आता है कि द्रौपदी ने जिन पूजा की थी, जिन चैत्य में पूजा की थी. So she was spiritually very advanced, just like other Mahasatis, and Draupadi is also one of the 16 Mahasatis. लेकिन इसमें एक और बात भी है. We can easily see how the society had declined from Adinath Bhagwan's time to Neminath Bhagwan's time. This is he was the 22nd Tirthankar. तो वहाँ तक आते आते society कैसे decline हुई थी. If you see, women were only seen as commodities. उनके husbands उन्हें जुए में हार गए. वो कोई मतलब चीज़ तो नहीं है ना जो आप जुए में हार जाओ. Yeah, तो that's लोग very इस तरह sad. से विमेन को देखने लगे थे. लाइक दैट इज़ वेयर द सोसाइटी वाज हेडेड टुवर्ड्स. एंड आप देखोगे तो इसी प्रैक्टिस को, इसी माइंडसेट को देखते हुए महावीर स्वामी भगवान ने 4 महाव्रत से 5 महाव्रत किए. Okay. आप देखोगे तो पार्श्वनाथ भगवान के काल में 4 महाव्रत हुआ करते थे. ब्रह्मचर्य महाव्रत एक्सप्लिसिटली स्टेटेड नहीं था. महावीर स्वामी भगवान ने ये 5वां महाव्रत, उन्होंने अपरिग्रह महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत इन दोनों को अलग किया ताकि कोई स्त्री को कमोडिटी में ना गिने. वो कोई कमोडिटी नहीं है, वो कोई चीज़ नहीं है जो आप दाव पर लगा दो एंड हार जाओ. शी इज़ अ कंप्लीट ह्यूमन, राइट. तो ऐसे आप इसीलिए भगवान ने सोसाइटी को सही मार्ग दिखाने के लिए 5 महाव्रत किए थे. 4 से 5 किए थे, भले ही एक्सप्लिसिटली स्टेटेड ना हो, लेकिन लोग मानते थे. बट यू सी, जैसे जैसे सोसाइटी डिक्लाइन होते जा रही थी, जैसे इस तरह की सोच आगे आ रही थी जहाँ विमेन को इन्फीरियर मान रहे थे, तो इसमें भगवान ने सोचा इट इज़ बेटर फॉर द सोसाइटी टू हैव 5 महाव्रत्स एंड ऐसी ही टीचिंग होनी चाहिए. Understood. So, during the time of Draupadi, I think it was around the same time where the story of Rajimati also comes in, right? यस. एंड उन्हें तो कैसे भूल सकते हैं. नेम कुमार की वारा तो उनके चौखट से वापस चली गई थी. You know, such a situation, even if it happens today, it is a matter of such shame for the family of the girl. They are subjected to so much social embarrassment. तो ऐसे में राजीमती के दिमाग में कैसे ख्याल आए होंगे, आप ही सोचिए. कि कैसे? मतलब दूल्हा आया है चौखट तक and he is going back.
उन्हें रीज़न भी नहीं पता था तब तो, क्योंकि वो तो महल में थी, उन्हें रीज़न भी नहीं पता था. And the reason was that he wanted to take Diksha then, right? नो नॉट एग्जैक्टली, द रीज़न वॉज उन्हें वैराग्य जागा था जब उनकी शादी की फीस्ट के लिए एनिमल्स को स्लॉटर करने वाले थे. Okay. एंड उन्होंने उन एनिमल्स की आवाज़ सुनी और उससे उन्हें फील हुआ कि मैं जो करने जा रहा हूँ क्या है ये, मैं क्या कर रहा हूँ. एंड उसी मोमेंट पर उन्हें वैराग्य हो गया, उन्होंने दीक्षा लेने का विचार तभी कर लिया. और ये जब वो राजीमती के घर आ रहे थे बारात लेकर, उस समय पर ये हुआ. तो ऐसे में आप सोचिए ना, राजीमती का भी कैसा माइंडसेट रहा होगा कि वो भगवान के पीछे पीछे चली गई. Okay. वो जहाँ जा रहे थे, वो गिरनार पर चढ़े, वो भी पीछे पीछे चली गई. अच्छा. और फिर उन्होंने दीक्षा ले ली भगवान ने. कुछ समय बाद अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से राजीमती ने भी उनके पास दीक्षा ले ली. आप सोचिए, स्पिरिचुअली एडवांस्ड होंगी तभी ही ये हुआ होगा. Of course, like instead of letting that moment break her, she chose to move forward and grow with that. एग्जैक्टली. एंड आप सोचिए ना कि इतने एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, महिलाओं के, गर्ल्स के इतने एग्जाम्पल्स हैं, लड़कियों के, साध्वियों के, ऐसी सतियों के इतने एग्जाम्पल्स हैं जो स्पिरिचुअली कई बार पुरुषों से भी आगे होती है. True. इतने एग्जाम्पल्स होने के बावजूद कुछ संप्रदाय, कुछ पंथ विशेष ऐसे हैं जो मानते हैं कि महिला मोक्ष नहीं जा सकती. वो जीवन भर कितनी भी साधना कर ले, कितना भी मेडिटेशन कर ले, कितनी भी तपस्या कर ले, लेकिन वो मोक्ष नहीं जा सकती. What? So isn't this against the teachings of Rishabdev Bhagwan itself? आप देखने जाओगे तो हमारे ग्रंथों में 15 अलग अलग भेद के सिद्ध बताए गए हैं. उनमें पुल्लिंग सिद्धा, नपुंसक लिंग सिद्धा भी आता है कि ट्रांसजेंडर्स भी मोक्ष जा सकते हैं. Oh, so it was so progressive that we thought even about the other religion, even about the other genders since then. ये तो बात थी ही ना, जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, जो सोसाइटी का पार्ट है, उसको लेकर भगवान ने कोई तो बात कही होगी. सो ट्रांसजेंडर्स. एंड देखिए, आप मोक्ष की बात करेंगे तो अभी ये जो मैंने 15 तरह के सिद्धों की बात की है, उनमें पुल्लिंग सिद्धा, नपुंसक लिंग सिद्धा के साथ साथ स्त्रीलिंग सिद्धा भी आता है. तो मोक्ष तो सभी जा सकते हैं, ये तो भगवान के सिद्धांत में लिखा है. एंड ये हमें ऐसा लगता है कि ये यूटोपियन आइडिया है, ये सब बहुत नया है, ये सब अभी आया है. लेकिन कम से कम आप 2000 साल पहले जाओगे, 2500 साल पहले महावीर स्वामी के समय में जो आगम सूत्र लिखे गए थे, उनमें ये बात लिखी है कि नपुंसक लिंग सिद्धा भी होते हैं. और आप आज के समय में तो हम 2 ही पंथों को जानते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर पंथ. लेकिन कुछ वर्षों पहले तक एक यापनिया पंथ भी था. Okay. जैनिज्म में यापनिया सेक्ट भी एग्जिस्ट करता था. Okay. अब यापनिया सेक्ट का इस पर क्या स्टैंड था, वो तो स्ट्रिक्टली एडवोकेट करते थे कि फीमेल्स मोक्ष जा सकती है. दिस हैज़ बीन अ वेरी बिग क्वेश्चन ऑफ फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस बिटवीन श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स. लेकिन यापनियाज भी यही मानते थे कि स्त्री मुक्ति पॉसिबल है. और इस बात पर यापनिया सेक्ट के एक साधु थे, पाल्यकीर्ति शकतायन नाम था उनका. उन्होंने एक पूरा ग्रंथ लिखा है इस पर, उसका नाम है स्त्री निर्वाण प्रकरण. उन्होंने पूरा ग्रंथ लिखा है फिलोसॉफिकली प्रूविंग कि स्त्री मुक्ति कैसे पॉसिबल है. एंड एकदम बेसिक लैंग्वेज में मैं आपको उस ग्रंथ का या हमारे आगम सूत्रों का सार बताऊँ तो मोक्ष जाने से पहले आत्मा शरीर का त्याग कर देती है. और जेंडर शरीर से रिलेटेड होता है. जेंडर का आत्मा से कोई रिलेशन नहीं होता. तो जब आत्मा को उससे मतलब ही नहीं है, जेंडर से कोई लेना देना ही नहीं है, तो आत्मा को मोक्ष जाने से वो जेंडर कैसे रोक सकता है? दैट्स नॉट पॉसिबल. Correct. लॉजिकली ऑल्सो दैट्स नॉट पॉसिबल. सो ये सारी चीज़ें बाद में ही डेवलप हुई है. भगवान के सिद्धांत में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि किसी को किसी से इन्फीरियर माना जाए. हर आत्मा उतनी ही केपेबल है जितनी पुरुषों की आत्मा है, जितनी महिलाओं की आत्मा है, जितनी नपुंसकों की आत्मा है. True. जितना चांस है कि आप शायद मोक्ष जा सकते हो, उतना ही चांस है कि मैं भी मोक्ष जा सकती हूँ. बिल्कुल.
like that's crazy to think about कि just women मोक्ष जा सकते हैं, उस पे एक पूरा ग्रंथ लिखा हुआ है. एग्जैक्टली ग्रंथ तो लिखा. अब आप सोचिए ये ग्रंथ लिखने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि सोसाइटी में कितना ये नैरेटिव फैलाया जा रहा था कि विमेन मोक्ष नहीं जा सकती, विमेन आर इन्फीरियर. आप कितना भी प्रयास कर लो, आप कितनी भी साधना कर लो, अब मोक्ष नहीं जा सकते. अगर ऐसा कोई आपसे कहेगा तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? हम तो आदिनाथ भगवान के सिद्धांत को मानते हैं और भगवान के सिद्धांत में ऐसी इनइक्वालिटी अगर स्टार्टिंग से होती तो ये हमें दूसरे धर्मों में भी दिखती ना. True. ये हमें इस तरह का सब्जुगेशन ऑफ विमेन, इस तरह का नेगेटिव कॉनोटेशन अबाउट सेक्सुअलिटी इज़ नॉट सीन इन जैनिज्म एट ऑल. एंड आप जब आप थोड़ा और टाइम में पीछे जाकर देखोगे तो आदिनाथ भगवान के टाइम पर तो नहीं, फिर मल्लीनाथ भगवान वो खुद एक स्त्री थे, तीर्थंकर ही स्त्री थे. हाँ. उन्होंने दीक्षा भी दी मेल गणधरों को. मोक्ष जाना सिर्फ पुरुषों के लिए पॉसिबल है. दैट इज सच अ पेट्रियार्कल बिलीफ. एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ चंदन बाला स्टोरीज कि आई हैव हर्ड दैट शी ऑल्सो वेंट टू मोक्ष. So, could you shed light on her story? श्योर. चंदन बालाजी, जब हम उनकी बात करते हैं तो आप देखिए सोसाइटी कितनी डिक्लाइन हो चुकी थी उस समय तक कि चंदन बालाजी जिस किंगडम की प्रिंसेस थी, उस किंगडम पर किसी अटैकिंग किंग ने उन्हें लेकर बाज़ार में बेच दिया था. Okay. बाज़ार में बेच दिया था. ये कब की बात कर रहे हैं हम? 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं. तो आप सोचिए कि विमेन का कैसा स्टेटस था उस टाइम पर. उस टाइम तक डिक्लाइन होते होते क्या हालत हो गई थी सोसाइटी की कि लड़कियां बिक रही थी बेसिकली. हाँ. और ये चीज़ आपको सिर्फ यहाँ पर नहीं, आप थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखोगे, ये तो हमारे ग्रंथों की बात हो गई, इनमें तो हिस्टोरिकल नैरेटिव्स बहुत सारे हैं. तो आपसे कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस मांगे इसका तो आप थोड़ा पीछे जाकर टाइम में 2300 साल पहले मेगास्थीनिस जो ग्रीक स्कॉलर इंडिया आए थे, उन्होंने इंडिका नाम की एक बुक लिखी थी. उसमें उन्होंने इस बात का वर्णन बहुत क्लियरली किया है कि उस समय पर भी लड़कियों को जिनकी शादी नहीं होती थी उन्हें बाज़ार में बहुत कम दाम पर बेच दिया जाता था. ऐसा उन्होंने लिखा है. तो आप स्टेटस देखिए विमेन का कि क्या हालत हो गई थी. और उस समय पर चंदन बालाजी की भी ऐसी ही हालत हुई थी. एक भले सेठ ने उन्हें वो पैसा देकर उन्हें लेकर आ गए घर पे और उनका ध्यान बेटी की तरह रखा. उन्होंने ऐसा ही सोचा कि जब ये तो क्या है, राजकुमारी है, उन्हें पता चल गया था, तो जब इनके माता पिता मिलेंगे तब हम इन्हें वापस भेज देंगे इनके घर पर. लेकिन वो सेठ की जो वाइफ थी उन्हें चंदन बाला से बहुत जलन होती थी. ओह. तो क्योंकि चंदन बाला बहुत सुंदर थी. ओके. ऐसा ही वर्णन आता है कि वो बहुत सुंदर थी, तो उनसे जलन होती थी. वो उन्होंने उनके बाल शेव कर दिए और उन्होंने उनको बेड़ियों में बांधकर घर के कोने में रख दिया और बोला कि अब तो यहीं पर रह. 3 दिन बीत गए. 3 दिन तक उन्होंने कुछ खाया नहीं और फिर उन्होंने ये विचार कर लिया कि अब मैं तभी खाऊंगी, ये उन्होंने संकल्प लिया, तभी खाऊंगी जब मैं किसी अतिथि को खाना परोसूंगी. So even while being in such pain and even when so many things happened to her, उन्होंने तब भी फिर भी एक संकल्प लिया था. हाँ, क्योंकि वो स्पिरिचुअली एडवांस्ड थी बहुत. वही बात आती है, सती इसीलिए कहा जाता है. चंदन बालाजी की तो शादी नहीं हुई थी तो उन्हें सती में कैसे गिने ना. तो यही डेफिनेशन फिर अप्लाई होती है. वो स्पिरिचुअली बहुत एडवांस्ड थी. और उसी टाइम पर महावीर स्वामी भगवान वहाँ पर आए. उन्होंने उनसे वो उड़द की दाल, उड़द के बाकुले मतलब एक्सेप्ट किए. और फिर महावीर स्वामी भगवान ने पारना किया. कुछ समय बाद फिर चंदन बालाजी ऑब्वियसली स्पिरिचुअली अवेकेंड है, तो उन्होंने महावीर स्वामी भगवान से दीक्षा ले ली. और जैसे राजीमती नेमिनाथ भगवान के संग में साध्वियों की लीडर बनी थी,
जैसे ब्राह्मी जी आदिनाथ भगवान के संग में साध्वियों की लीडर बनी थी, वैसे चंदनवाला जी महावीर स्वामी भगवान के संग में साध्वियों की लीडर बनी थी। सो रुशद, आपने ये सारे लीडर्स की बात करी, बट what exactly did they do to become leaders, and what did they do in their capacity of being leaders, and what can we as women of the 21st century learn from them about leadership? सो एज लीडर्स ऑफ कोर्स वो साध्वी संघ की लीडर थी चंदनबाला जी, राजीमती जी। एज लीडर्स इन देयर कैपेसिटी दे परफॉर्म द मैनेजमेंट ऑफ द संघ। अब इतनी सारी साध्वी जी जो हैं, मतलब 3 लाख से ज़्यादा साध्वी जी महाराज थी जब आदिनाथ भगवान के टाइम पर ब्राह्मी जी लीडर बनी थी। उनके हर एक के साथ पर्सनली उनका जो मतलब ज्ञान को लेकर जो उनसे बातें होती थी, किसने कितना सीखा, बिकॉज एवरीबडी वॉज लर्निंग, राइट। तो ये सारा काम लीडर्स का होता है। एंड इसमें चंदन बालाजी का एक बहुत अच्छा एक बहुत अच्छी स्टोरी आती है। आपने जैसे 16 महासती है, उनमें चंदन बालाजी भी आती है और एक मृगावती जी भी आती है। शी वॉज अ डिसाइपल ऑफ चंदन बालाजी। तो एक बार ऐसा हुआ कि मृगावती जी भगवान की देशना सुनने के बाद उनको वापस उनके स्थान पर आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। तो उसमें चंदन बालाजी जनरली बहुत स्ट्रिक्ट थी उनके डिसाइपल्स के साथ। शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट कि लेट नहीं होना चाहिए किसी चीज़ में। डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब वो तो लेट हो गई, एंड आने के बाद चंदन बालाजी ने उनको डांटा कि ऐसा फिर नहीं होना चाहिए, आप ये ध्यान रखिएगा। और रात का समय था, तो फिर चंदन बालाजी सो गई। उसके बाद उन्हीं के पास बैठी बैठी मृगावती जी गिल्ट में ये सोचती रही कि मैंने मेरे गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया, मैंने उनकी आज्ञा नहीं मानी, ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो गिल्ट का भाव बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि उनके सारे कर्म टूट गए और फिर उन्हें सीधा वहाँ पर केवल ज्ञान हो गया मृगावती जी को। चंदन बालाजी तो सो रही थी और फिर केवल ज्ञान हो गया। तो ऑफ कोर्स अब चंदन बालाजी के पास से एक सांप जा रहा था, तो उन्हें अंधेरे में दिखने लगा मृगावती जी को केवल ज्ञान के प्रभाव से। अब चंदन बालाजी के हाथ के पास से काला सर्प जा रहा था। अंधेरे में किसी को दिखे भी ना वो, लेकिन उन्हें दिख गया। तो अपने गुरु को बचाने के लिए उन्होंने उनका हाथ ऊपर कर लिया ताकि सांप को जाने का रास्ता मिल जाए। राइट। और इससे चंदन बालाजी जाग गई। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ। अब मृगावती जी झूठ तो नहीं बोल सकती, केवली बन चुकी है वो तो। करेक्ट। तो तब एंड केवली नहीं थी तब भी झूठ तो नहीं बोलते थे, महाव्रत लिया था तो उन्होंने मतलब सांप वाली बात पूरी बताई। और फिर चंदन बालाजी ने उनसे पूछा कि इतने अंधेरे में कैसे दिखाई दिया आपको? कैसे पता चला कि सांप था? हाँ, कोई विशिष्ट ज्ञान हुआ है क्या आपको? चंदन बालाजी ऑफ कोर्स मतलब लर्नड तो थी ही, तो उन्होंने ऐसा पूछा। तो मृगावती जी ने बस इतना आंसर किया कि सब आपकी कृपा से हुआ है। और ये आंसर सुनते ही चंदन बालाजी को पता चल गया कि इन्हें केवल ज्ञान हुआ है और मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने केवली को डांट दिया। वो ऐसे सोचने लगी। एंड आप नॉर्मली सोचोगे तो किसी ऐसे मतलब शिष्य को गुरु से पहले केवल ज्ञान हो जाए तो हाउ आर वी टॉट टू सी विमेन, मतलब that they will just be jealous of each other. Yes, वो जेलेसी का भाव आएगा, ये हमें ऐसा लगता है। लेकिन उस मोमेंट पर उन्हें जेलेसी फील नहीं हुई। उन्हें इस बात का गिल्ट हुआ कि मैंने केवली की आशाधना कर दी, मैंने केवली को डांट दिया, ये मुझसे क्या हो गया। और उस बात का गिल्ट तो उन्हें भी था। तो उनका भी गिल्ट भाव इस लेवल पर गया कि उन्हें भी केवल ज्ञान हो गया। ओके। तो आप देखोगे तो मतलब एक शिष्य गुरु के केवल ज्ञान का निमित्त बना। करेक्ट। जनरली यू डोंट गेट टू सी सच थिंग्स, राइट। और फिर अब गुरु शिष्य की बात करें तो ये जब पॉइंट याद आया ही है, तो
जनरली जब गुरु पूर्णिमा होती है और एनी सच ओकेजन जहाँ गुरु को हम वेनरेट करते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं या उनकी पूजा करते हैं, उस दिन जनरली वी आर टॉट टू सी मेल गुरुज, लेकिन यहाँ आप देखो गुरु और शिष्य दोनों ही फीमेल्स हैं। गुरु शिष्य परंपरा में दिस इज अ वेरी अनकन्वेंशनल एग्जाम्पल। कभी ऐसा सुना नहीं होगा पहले। तो आप देखिए कितनी सुंदर कहानी है, कितना सुंदर तरह से इसका आगम सूत्रों में इसका वर्णन कितना सुंदर तरह से किया गया है, और कैसे एक शिष्य अपने गुरु के केवल ज्ञान का निमित्त बनता है। सो एज लीडर्स इनके रोल्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थे, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स भी है जहाँ उनका शिष्यों के साथ बहुत पर्सनल टच था, एंड ऐसे इंस्टेंसेस हुए। कई सारी कहानियाँ तो हमें पता भी नहीं है, बट दिस इज़ वन दैट स्टैंड्स आउट। True, this is so different from what the mainstream thinking is about two women, and it makes me so proud, honestly, because right now if you think about it, two women are always seen as competition for each other, and if we go back and realize that हम एक दूसरे के लिए कितना बड़ा निमित्त बन सकते हैं, केवल ज्ञान का भी निमित्त बन सकते हैं। जो महावीर स्वामी भगवान के साध्वियों की जो परंपरा थी, तो उसमें आप देखोगे तो आपने कभी याकिनी महत्तरा का नाम सुना होगा। शी स्टैंड्स आउट एज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन साध्वीजीज ऑफ आवर संघ। आपने सुना होगा? Yes, I've heard about Yakini Matara, and I've heard about her while listening to stories about Haribhadra Suriji. I think he was called as Yakini Putra, and but I didn't understand the depth of that relationship. What is that entire story about? So Yakini Mahattara is a title given to very learned sadhvijis. Okay. तो she was obviously very learned, and ये चित्तौर की बात है, चित्तौड़गढ़ की। वहाँ पर याकिनी महत्तरा एक उपाश्रय में थी उस समय पर, और हरिभद्र सूरी जी ने तब दीक्षा ली नहीं थी। ही वॉज इन द संसार, एंड वो जैन धर्मी नहीं थे। हरिभद्र सूरी जी वॉज अ ब्राह्मण, and he had memorized all 4 Vedas. He knew a lot of Upanishads and a lot of Puranas. तो आप देखोगे तो नॉलेज की तो उनमें बिल्कुल कमी नहीं थी। लिटरेचर ऐसे याद था उन्हें कि उनके सर पर एक बात का ऐसा, आप ईगो, कुछ लोग इसे ईगो भी बोलते हैं, बट आई सी इट एज सेल्फ कॉन्फिडेंस। उन्हें इस बात का सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि मुझे कोई भी इस तरह का ऐसा कोई भी श्लोक मुझे नहीं दे सकता जिसका मीनिंग मैं ना समझा सकूं। ये उनके दिमाग में था, एंड इन्होंने ये बात ओपनली भी कही थी कि अगर कोई मुझे ऐसा श्लोक दे देता है जिसका मीनिंग मैं ना समझ सकूं और मैं किसी को समझा ना सकूं, तो मैं उनसे दीक्षा ले लूँगा, मैं उनकी बात मान लूँगा। Okay. तो वो एक बार उस उपाश्रय के पास से गुजर रहे थे, तब याकिनी महत्तरा जी आगम सूत्र का स्वाध्याय कर रही थी। तो उस समय पर उन्होंने एक श्लोक कहा। उस श्लोक का मीनिंग हरिभद्र सूरी जी जो उस समय पर सांसारिक थे, उस समय पर उन्होंने उसका मीनिंग डिसाइफर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाए। अंत में उन्होंने याकिनी महत्तरा से पूछा, तो साध्वी जी ने उनको बहुत ही सरल भाषा में समझा दिया। उससे वो इतने इम्प्रेस हो गए, इस एक्सप्लेनेशन से वो इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने और चीज़ें कहने को कहा। फिर याकिनी महत्तरा ने कहा, आप अगले दिन आइए, मेरे गुरु से मिलिए, वो आपको और भी ज्ञान दे देंगे। और फिर ऐसे आगे जाकर हरिभद्र सूरी जी ने दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेकर भी आप उनकी प्रभावकता देखिए। आगे जाकर 1444 इतने ग्रंथ उन्होंने लिखे। ऐसा लोग मानते हैं कि उनको जो 14 पूर्व हम खो चुके थे पहले ही, उनको उनमें से एक पूर्व जितना ज्ञान था। उस बेसिस पर उन्होंने एक आगम सूत्र जो एक मतलब हमारे पास था नहीं, वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, उसकी कोई मैन्युस्क्रिप्ट भी नहीं थी, वो आगम सूत्र उन्होंने रिवाइव किया, श्री महानिषित सूत्र। ओह। तो उसके बेसिस पर उन्होंने ये
किया ऐसा कहा जाता है। लेकिन आप सोचिए कि क्या हमारे पास हरिभद्र सूरी होते अगर याकिनी महत्तरा उस समय पर आगम सूत्र का स्वाध्याय नहीं कर रही होती, या वो उन्हें समझाने से इनकार कर देती कि मैं नहीं समझाऊंगी, ये मेरी कैपेसिटी में नहीं है। नहीं, उन्होंने तो संघ course के not. लिए अच्छा सोचा, संघ के लिए जो सही है वो सोचकर ये सब कुछ हुआ। तो आप सोचिए कि याकिनी महत्तरा उनकी सोच समझ कितनी आगे रही होगी उस टाइम पर। उनकी खुद की जो आराधना थी, उनकी खुद का जो नॉलेज था उनका, वो भी कितना आगे रहा होगा कि उन्होंने सोचा कि हरिभद्र सूरी जी को दीक्षा दिलवानी है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्हें याकिनी पुत्र भी कहा जाता है, इसीलिए कि याकिनी महत्तरा का उन पर बहुत बहुत बड़ा उपकार रहा है। Correct. That's very interesting. And do we have any more stories about such sadhvijis? बिल्कुल, लाइक आप देखोगे तो कितनी ही साध्वी जी हो गई। अभी आपको ये बात तो पता ही होगी कि आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर स्वामी भगवान तक के सभी तीर्थंकर भगवान के संघ में श्राविका और साध्वी जी, इनकी जो पॉपुलेशन थी वॉज ऑलवेज ग्रेटर देन साधु जी एंड श्रावक्स। I think we see that now also in almost all the sanghs. एग्जैक्टली, दिस इज नॉट अ प्रैक्टिस, दिस इज एन ऑब्जर्वेशन। ये स्टार्ट से होता आया है। सो इट हैज़ टू सिम्बलाइज समथिंग, राइट? इफ सो मैनी women आर पार्ट ऑफ द संघ, तो उनकी कोई तो फुटिंग होगी, उनकी कोई तो उनका कोई तो स्टेटस होगा। सो इसी बात पर आप याद करिए, आपने कभी विशेष आवश्यक भाष्य का नाम सुना होगा। श्री विशेष आवश्यक भाष्य, ये 7th सेंचुरी में लिखा गया एक टेक्स्ट था। आचार्य जिनभद्रगनी क्षमाश्रमण ने लिखा था ये। उसमें उन्होंने कई सारे तत्वों का एक्सप्लेनेशन दिया है। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट। और ये लिखने में उनके साथ 7 मोर पीपल, 7 और लोग थे जिन्होंने उनकी हेल्प की थी इन कॉम्पोजिशन ऑफ दिस। उन 7 में से 2 साध्वी जी महाराज थी, आनंद महत्तरा और वीरमती गणिनी। उनको कितना नॉलेज रहा होगा कि उन्होंने एक आगम सूत्र लिखने में आचार्य भगवंत की हेल्प की। कितना ज्ञान रहा होगा उनके पास। महत्तरा और गणिनी, ये तो टाइटल्स है, बहुत आगे अगर वो सीख ले उसके बाद ही टाइटल्स मिलते हैं, टाइटल्स ऐसे ही नहीं दिए जाते। तो आप सोचिए। और हम जब नवकार मंत्र बोलते हैं, जब हम नमो लोए सव्व साहुनम बोलते हैं, तो उसमें उसका मतलब क्या होता है? आई बाउ डाउन टू ऑल द साधु एंड साध्वी भगवंत्स। वहाँ महाविदय क्षेत्र के भी आते हैं, भरत क्षेत्र के भी आते हैं, तो उसमें साध्वी जी भगवंत भी आते हैं। नमो लोए सव्व साहुनम मतलब सभी साधु साध्वियों को मेरा वंदन है। तो ये सब शास्त्रों में लिखा गया है। आप सोचिए, जब भी आप नवकार मंत्र बोलते हो, आप साध्वी जी महाराज को भी वंदन करते हो। Correct. One would have never imagined that even at that time, Sadhvijis were so ahead of their time. They were contributing so much to our literature, even at a time where women were barred from learning. Yes, women were barred from learning, लेकिन हमारे संघ में जनरली ऐसी चीज़ें प्रिवेलेंट नहीं है। Women were not barred from learning mostly in the जैन संघ। ये एक सोशल कस्टम बन गया था दैट विमेन को थोड़ा इन्फीरियर मानना है एंड उन्हें इतना ज्ञान नहीं देना है। दैट इज़ वेयर द सोसाइटी वाज स्टक एट। सुबह एक्चुअली मेरे फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी, तब उन्होंने मुझे बताया कि मैं भगवान महावीर स्वामी को एज अ रिफॉर्मर देखता हूँ। एज अ रिफॉर्मर कैसे? एग्जैक्टली, एज अ रिफॉर्मर। मैंने यही पूछा उन्हें। एज अ रिफॉर्मर इसलिए, जैसे मैंने आपको पहले ये बात बताई थी कि 4 से 5 महाव्रत किए ताकि विमेन का स्टेटस थोड़ा अपलिफ्ट हो जाए। तो उस समय पर विमेन के लिए कोई स्पिरिचुअल पाथ नहीं था। उस समय पर जो कंटेम्पररी रिलीजन्स थे उसमें विमेन को कंप्लीटली साइडलाइन कर दिया जा चुका था ऑलरेडी। ओके। एंड महावीर स्वामी भगवान ने जब संघ एस्टैब्लिश किया, उस टाइम पर विमेन को, जो ऑलरेडी सोसाइटी में एकदम डाउन ट्रोडन लेवल पर जा चुकी थी, जैसे मार्केट में बेच रहे थे लोग उन्हें, तो उस समय पर विमेन को एक पाथ मिला
कि धर्म से जुड़ने का एक पाथ मिला, और ऐसे भगवान एक रिफॉर्मर हुए। भगवान ने ये सब तो जो एक तीर्थंकर करते हैं, संघ की स्थापना, तत्वज्ञान जो सभी को देते हैं, देशना देते हैं, वो सब तो उन्होंने किया। उससे अधिक भी उन्होंने किया कि समाज में जो ऋषभदेव भगवान के जो ओरिजिनल वैल्यूज़ थे दैट हैड टू प्रोपगेट थ्रू टाइम, तो वो सब जो लोग भूलते जा रहे थे उन सभी को उन्होंने वापस रिवाइव किया। तो हम भले ही हम उन्हें रिफॉर्मर बोलते, बट वॉट एवर ही वॉज डूइंग इज़ जस्ट अ रिवाइवल ऑफ द एक्चुअल ओल्ड वैल्यूज़ दैट वी हैड, द एंशंट वैल्यूज़ दैट वी हैड, वो बस उन्हें रिवाइव कर रहे थे। सो ऐसे मतलब आप देखने जाओगे तो विमेन का जो स्टेटस है उसको जितना भगवान महावीर स्वामी के संग में अपलिफ्ट किया है, द वे दिस हैज़ गॉन थ्रू पिछले 2500 साल में, उससे पहले भी जैसा उन्होंने जिस तरह से विमेन को, साध्वी जी को ट्रीट किया है, देयर इज़ नो अदर मैच फॉर दैट। सो आप देखोगे तो संघ में साध्वी जी महाराजों का कहाँ पर योगदान नहीं है। आप तीर्थ रक्षा देखो, श्रुत रक्षा देखो, आज के टाइम में साध्वी जी महाराज जितना काम कर रहे हैं साइलेंटली, क्योंकि ओपनली कोई आकर कभी वो बताते ही नहीं है, बट वो साइलेंटली कितना अच्छे से धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, तीर्थ की रक्षा कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे वो। कांगड़ा जी जो तीर्थ है हमारा, प्राचीन तीर्थ है, उसे बचाने में, उसकी रक्षा करने में एक साध्वी जी महाराज ने अपना पूरा जीवन दे दिया। अब आप देखोगे तो किस तीर्थ में उनका योगदान कहाँ नहीं है। आप देखो सराक क्षेत्र में उनका योगदान है, राजस्थान के कितने ही प्राचीन तीर्थों में उनका योगदान है, कुलपाक जी में भी उनका योगदान है, यहाँ तक कि तो उनका योगदान कहाँ नहीं है। आप अंतरिक्ष जी की एक घटना देख लो, 18 में 1981 में वहाँ पर एक अटैक हुआ था साध्वी जी महाराजों पर। तो उस समय पर एक आचार्य महाराज ने क्या कुछ नहीं किया उन्हें बचाने के लिए। इट वॉज़ अ फिज़िकल वायलेंट अटैक ऑन देयर उपाश्रय। तो क्योंकि उन्हें पता है कि साध्वी जी महाराज इस संघ का साइलेंट लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऐसे ही आप देखोगे तो एक बहुत ही प्रभावक साध्वी जी का एग्जाम्पल आता है। उनका नाम महत्तरा पद्माश्री जी था। अराउंड 1200s की उनकी बात है, 1200s और लेट 1200s की। उस टाइम पर उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ले ली थी, और 3 साल के अंदर अंदर वो प्रवर्तिनी बन गई थी एट द एज ऑफ 11। और उनके 700 शिष्या थी। एट द एज ऑफ 11 शी वॉज अ गुरु ऑफ 700 शिष्यास, और अगले 3 साल में उन्हें महत्तरा का स्टेटस भी मिल गया। उन्हें इतना ज्ञानी माना जाता है कि उनसे कोई भी वाद करने आता, वो बहुत सरल स्वभाव से, सरल भाषा में उन्हें एक्सप्लेन कर देती कोई भी चीज़। शास्त्रों का इतना ज्ञान था ना उन्हें। और उनकी प्रभावकता इतनी ज़्यादा, मैंने शायद किसी और साध्वी जी को लेकर ये बात नहीं देखी होगी। उनकी एक प्रतिमा है। साध्वी जी महाराज की जनरली प्रतिमा नहीं बनाते ना। साध्वी जी महाराज, ये महत्तरा पद्माश्री जी की एक प्रतिमा है मातर तीर्थ में, बड़ौदा के पास में ही। वहाँ पर उनकी एक प्रतिमा बनाई गई है। उनकी प्रभावकता इतनी ज़्यादा थी, वो देखकर ये प्रतिमा का निर्माण हुआ। तो आप सोचिए उन्हें कितना नॉलेज रहा होगा, उन्होंने संघ की कितनी प्रभावना की होगी, धर्म की कितनी प्रभावना की होगी, जो उनकी एक प्रतिमा बनाई है। उनके सिर पर, प्रतिमा में उनके सिर पर तीर्थंकर भगवान बनाए गए हैं कि भगवान की आज्ञा को सबसे ऊपर रखने वाली एक साध्वी जी, वैसा इंडिकेट करने के लिए। सो हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, राइट? Awesome. So you've told me a lot of stories about Sadhvijis, but if you were to point out any one feature that stands out to you about Jain Sadhvijis in our Sangh, what would that be? That's a good question. Actually, the one feature that would stand out to me would be, have you seen our Pattavali, the Pat Parampara that we Yes. have? The names of the leaders of our Sangh from Sudharma Swami to the current times. Correct.
तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ अर्ली आचार्यों के नाम के आगे आर्य वर्ड डालते थे. Right. आर्य वॉज द प्रीफिक्स. सो व्हाट वाज द रीज़न? द रीज़न वाज जिनके नाम के आगे आर्य डालते थे वो बाल्यावस्था में बचपन में ही साध्वी जी महाराज से सीखते थे. Oh, okay. So they used to learn a lot of things from Sadhvi Ji Maharaj as their students. बहुत कुछ सीखते थे एंड आगे जाकर वो दीक्षा ले लेते थे, तब उनके नाम के आगे आर्य आता था. तब आप देखोगे तो सुहस्ती सूरी जी, महागिरी जी का जो नाम है उनके आगे आर्य आता है. दैट इज़ बिकॉज उस समय पर एक साध्वी जी थे, यक्षा साध्वी जी नाम था उनका. उन्होंने सारा ज्ञान उनसे लिया था, उनके लेंस से उन्होंने सब देखा था. आप ऐसा समझिए कि एवरीथिंग दैट दे सॉ वाज थ्रू यक्षा साध्वी जीज लेंस. सो उन्हें ऑनर करने के लिए इनके नाम के आगे आर्य लगाते थे. एंड दिस इज़ वन थिंग दैट ट्रूली स्टैंड्स आउट. आप कोई भी बात देखो, जब उन्हें याद करोगे तो यक्षा साध्वी जी को भी याद करना करोगे. पड़ेगा. करेक्ट. और इनकी तो धर्म प्रभावना के कोई बाउंड्स ही नहीं है. तो उसके साथ साथ उनके जो गुरु थे स्थूलभद्राचार्य जी और यक्षा साध्वी जी, उनको भी उतना ही याद किया जाता है. Right. So we've heard a lot of stories about Sadhvijis, but are there any stories about prominent Shravikas in our sanghs as well? I have heard about Anupama Devi as a prominent figure. Yes, actually there are a lot of stories about Shravikas as well. आप देखोगे तो अच्छा, अनुपमा देवी से ही शुरू कर लेते हैं. अनुपमा देवी वॉज द वाइफ ऑफ तेजपाल. वस्तुपाल तेजपाल तो सबने सुना ही है. देयर इज नो वन जिन्होंने नहीं सुना होगा. तो तेजपाल की वाइफ थी वो. उन्होंने, अनुपमा देवी का नाम इतना फेमस क्यों है? क्योंकि उस समय पर आबू देलवाड़ा में जो तीर्थ, जो मंदिर बन रहे थे, जो जिनालय बन रहे थे, जो वस्तुपाल तेजपाल ने मतलब जिन्हें बनाने का काम किया था, तो उनका मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन के समय पर उनका जो मैनेजमेंट था वो अनुपमा देवी ने किया था. शी मेड एवरीथिंग अवेलेबल टू द आर्टिसंस एंड कितने सुंदर बनाए हैं वो जिनालय. उन्होंने सब कुछ अवेलेबल करवाया आर्टिसंस के लिए. वॉट एवर रॉ मटीरियल वॉज रिक्वायर्ड. यू नीड अ लॉट ऑफ स्टोन्स, राइट? एंड आबू तो ऊपर है, तो ऊपर भी लेकर जाने का सारा काम, एवरीथिंग शी मैनेज्ड. वो लेकर नहीं गई लेकिन उन्होंने मैनेज किया. एंड आप देखो तो तीर्थ जितने टाइम में बनता उससे जल्दी बना, क्योंकि अनुपमा देवी ने बहुत एफिशिएंटली ये मैनेजमेंट किया था. तो आप सोचिए कि फीमेल थिंकर्स, मतलब फीमेल थिंकर्स कितना आगे थी पहले. That is true. इनके अलावा तो आप देखोगे तो हटी सिंह ना देरासर जो आप देखते हो अहमदाबाद में, जो हटी सिंह नु देरासर है, तो वो हटी सिंह जो सेठ थे, उनकी जो वाइफ थी हरकुंवर बाई, उन्होंने कितना काम किया है. उस जिनालय का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी उन्होंने ही करवाया है. उसके साथ साथ उन्होंने गौशाला बनवाई, 2 और जिनालय बनवाए, कितने प्याऊ बनवाए, गर्ल्स के लिए स्कूल बनवाई. दैट इज़ व्हाट स्टैंड्स आउट. Okay. This was during British era, जब even British were struggling with laws like abolition of Sati Act. उस टाइम पर वो सती प्रथा को भी मतलब completely abolish करने के लिए ब्रिटिशर्स भी struggle कर रहे थे. और उस टाइम पर इन्होंने सारे stereotypes को तोड़ते हुए गर्ल्स स्कूल बनवाई थी, लड़कियों के एजुकेशन के लिए प्योरली. एंड इस टाइम पर पहुँचते पहुँचते फीमेल सब्जुगेशन हैड प्रोबेबली क्रॉस्ड द पीक. आप ऐसा समझो. मतलब उस समय पर लड़कियों की कोई भी फुटिंग नहीं थी, उन्हें ज्ञान देने का कोई नहीं सोचता था. लेकिन उन्होंने गर्ल्स स्कूल बनवाई. Correct. बिफोर एनीवन एल्स. Right. तो आप ही सोचिए कि श्राविकाओं का भी कितना रोल रहा है. अब इट इज़ नॉट लिमिटेड टू सेठानीज एंड विमेन ऑफ मिनिस्टर्स. मतलब आप अनुपमा देवी को देखोगे या हरकुंवर बाई को देखोगे तो इनके पास तो धन की कोई कमी ही नहीं थी. तो इन्होंने इनकी कैपेसिटी में ये जो कर सकते थे वो किया. लेकिन ऐसी भी कई श्राविका रही है जिन्होंने धन ना होते हुए या कम धन होते हुए भी बहुत प्रभावना की है.
आप देखोगे तो मथुरा में कितने ही आयागपट जो एक्सकेवेट होते हैं, उन पर आप देखोगे मैक्सिमम ऑफ दी जैन आयागपट्स जो ज़मीन से निकले हैं वो सब विमेन ने डोनेट करवाए हैं. सो देयर नेम्स आर रिटन ऑन इट. कहीं किसी नर्तकी का नाम है, किसी गणिका का नाम है, किसी लुहारन का नाम है. Okay. नोबडी इज़ अ सेठानी. वहाँ पर सभी का जो स्टेटस है इट्स नॉर्मल. दे आर नॉट वाइव्स ऑफ वेरी वेल्दी ट्रेडर्स. But still they did whatever was in their capacity. आपने कल्पद्रुम पार्श्वनाथ भगवान के तीर्थ के बारे में सुना होगा. उसकी प्रतिष्ठा एक गणिका ने करवाई है. Oh. तो आप सोचिए कितना सत्व रहा होगा ऐसे लोगों में जिन्होंने धर्म के लिए इतना काम कर लिया. फ्लावर वेंडर गर्ल्स ने भी वहाँ पर आयागपट प्रतिमाएं ये सभी स्थापित करवाई है. मथुरा में तो कितने ही एक्सकेवेशंस हुए हैं जिन पर फीमेल्स के ही नाम है. तो ऐसे आप देखोगे तो श्राविका कहीं कम नहीं रही है. उन्होंने भी प्रभावना उनकी कैपेसिटी में जितना हो सकता है उससे ज़्यादा ही की है. But these things sound like old stories when people had a very simple demeanor. How does this translate to today's society? इन दैट रिगार्ड इट्स लाइक आज के सोसाइटी में अगर आप देखने जाओगे तो वी हैव टू कॉन्स्टेंटली रिमेंबर दीज पीपल. ये जो साध्वी जी हुई, ये जो श्राविकाएँ हुई, इन्होंने कैसे क्या क्या काम कर लिए. दे डिड नॉट गो विद द फ्लो ऑफ द डिक्लाइनिंग सोसाइटी. सोसाइटी डिक्लाइन हो रही है, मैं भी डिक्लाइन हो जाती हूँ, ऐसा तो नहीं किया ना उन्होंने. दे स्टूड आउट फ्रॉम द क्राउड. तो ऐसे आप देखने जाओगे तो इन माई ओपिनियन, मतलब मेरी थिंकिंग तो ऐसी है कि लोगों को इसे थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री रोल में देखना चाहिए, नॉट विद अ कॉम्पिटिटिव लेंस. आप देखोगे तो इट्स नॉट अबाउट मैस्कुलिन वर्सेस फेमिनिन, इट्स मोर अबाउट मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. हाउ पीपल कैन वर्क टुगेदर, हाउ द सोसाइटी कैन प्रोग्रेस. अभी आप आदिनाथ भगवान के आप संघ को आप फिर से अगर थोड़ा पीछे जाकर देखो तो कोई भी सोसाइटी, संघ को नहीं, उनकी दीक्षा से पहले उन्होंने जो सोसाइटी बनाई थी, सिविलाइजेशन बनाया था, उसमें आप देखो तो इफ वन व्हील इज नॉट वर्किंग कैन द कार गो अहेड? Not at all. नॉट एट ऑल, राइट. तो उसमें ऐसा है कि इट्स if only one part of the society is very strong and the other part is completely subjugated, so you can compare it to a bird flying with one wing. वो उड़ ही नहीं सकता. It's not possible. And वैसे ही civilization में भी है. If men are given some status, men are given some power, so women should also be given some status, some power, जो respect उन्हें नॉर्मली एक सिविलाइजेशन में मिलनी चाहिए. सो दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. अगर ये आप रियल वर्ल्ड में ट्रांसलेट करो तो ये सारी स्टोरीज कॉन्स्टेंटली एक पुरुष को भी और एक स्त्री को भी बहुत इंस्पायर कर सकती है. देयर इज़ नो बाउंड टू द इंस्पिरेशन दैट दीज कैन प्रोवाइड. What are the lessons from this ancient wisdom that we can get for leadership today? सो आप लीडरशिप में आप देखोगे तो वी हैव डिस्कस्ड एट लेंथ अबाउट चंदन बालाजी, मृगावती जी, राजीमती जी. तो इन सभी ने संघ की व्यवस्था को कैसे संभाला. आप देखोगे तो अभी एक एक साध्वी जी, उनके लीडर का एक एक साध्वी के साथ इंटरेक्शन तो नहीं पता हमें, लेकिन हमें मोरलेस ये तो पता है कि ब्राह्मी जी 3 लाख या 3.5 लाख जितने साध्वी जी थे उनकी लीडर थी. तो लीडर होने का मतलब क्या है? दैट शी मस्ट हैव मैनेज्ड समथिंग. संघ की व्यवस्था, संघ ऐसे ही तो नहीं चलता. सबको जो ज्ञान देना है, सबको जो आचार का ज्ञान देना है, ये सारी चीज़ें जो लीडर्स मैनेज करते थे पहले के समय में भी, आज के टाइम में विमेन शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट. करेक्ट. एंड मेन शुड टेक इंस्पिरेशन दैट वी हैव टू गिव अपॉर्चुनिटीज टू विमेन एज वेल. मतलब ऐसा नहीं है कि कैपेबिलिटी नहीं है विमेन में, कैपेबिलिटी तो है ही. वो तो इतने एग्जाम्पल्स देख लिए और कितने देखने हैं. तो कैपेबिलिटी तो हमें दिख ही रही है. बट द थिंग इज दैट कैपेबिलिटी इज नॉट रिफ्लेक्टेड, दैट नॉलेज ऑफ दैट कैपेबिलिटी इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन टूडेज वर्ल्ड. तो ये जैन संघ में ये जो हमारी हिस्ट्री रही है,
इससे बहुत कुछ सीखने जैसा है. Correct. So one of my last questions to you is इस पूरे conversation से आप एक चीज़ ऐसा क्या है जो चाहेंगे कि सब याद रखे? What is one takeaway that everyone should take from this? So in my opinion everyone should know that भगवान ऋषभ देव ने सोसाइटी को इक्वालिटी के बेसिस पे नहीं, एफिशिएंसी के बेसिस पर बनाया. बट that doesn't mean that one part of the civilization is functioning very well and the other isn't. तो वो civilization ही नहीं है. It will decline with time. Only males themselves cannot sustain the civilization and neither can only females. वो तो कोऑपरेटिव होना चाहिए. इट्स अ कोऑपरेटिव एफर्ट. इसीलिए उसे सिविलाइजेशन बोलते हैं, इसीलिए उसको सोसाइटी बोलता है. यू हैव टू बी सोशल, इसीलिए उसको सोसाइटी बोलता है. सो ऐसे में आप किसी एक सेक्शन को सब्जुगेट करोगे, इट डज नॉट वर्क दैट वे. एंड आप भगवान के सिद्धांत को ही देखो. भगवान का सिद्धांत क्या है कि चतुर्विद संघ में 4 पार्ट्स होते हैं. श्रावक और साधु है तो श्राविका और साध्वी भी है. करेक्ट. तो चारों पिलर्स होंगे तभी वो चतुर्विद संघ होता है, तभी वो भगवान का संघ होता है. इफ इवन वन ऑफ देम इज मिसिंग तो वो संघ कैसे चलेगा? इट्स नॉट पॉसिबल. आदिनाथ भगवान के समय से जो परंपरा चली आ रही है, आज अगर आप उसे देखो तो चतुर्विद संघ की जो इम्पोर्टेंस है, जितना श्रावक और साधु वर्ग इम्पोर्टेंट है, उतना ही श्राविका और साध्वी वर्ग भी इम्पोर्टेंट है. और आप अच्छा, मैं श्राविकाओं के बारे में 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें ना बताना भूल गया आपको. ऐसा है कि आपने पेथड़ शाह मंत्री की बात सुनी होगी. तो पेथड़ शाह मंत्री की जो माता थी उनका नाम विमल श्री था. ओके. तो विमल श्री वो इतना दान देती थी कि लोग फिर ऐसा मानने लगे कि जब उनके दर्शन हो जाए तब वो धन्य हो गए. वो उनके दान पुण्य के कर्मों पर वो लोग इतना ऐसा सोचने लगे थे कि इनके दर्शन हो जाए तो हम धन्य हो गए. वो जब जिनालय जाती थी सब दान देते हुए जाती थी. उसके बाद अब फिर लोगों ने एक ग्रीटिंग ही बना ली, विमल श्री सुप्रभातम. अच्छा. मतलब उसको एज अ ग्रीटिंग ही मतलब बना दिया लोगों ने कि विमल श्री का नाम हम जब ले तो हमारी लाइफ में भी ऐसा ही सौभाग्य आए, ऐसी ही सुख समृद्धि आए. तो लोगों ने उसकी ग्रीटिंग बना दिया था. वैसी ही बात ना वस्तुपाल तेजपाल इनकी माता के बारे में आती है. आप देखोगे तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी एंड उनकी रीमैरिज हुई थी. ओके. और वस्तुपाल तेजपाल की जो माता थी उनके लिए आचार्य भगवंतों ने भी इतनी सारी स्तुतियाँ लिखी है, इतना उनको प्रेज किया है. कई में तो ऐसा लिखा है कि संसार असार है, लेकिन सार यही है जो व्यक्ति वस्तुपाल तेजपाल जैसे मंत्रियों की माता की बात सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर ले. ओहो. तो ऐसी सारी बातें भी हमारे ग्रंथों में लिखी गई है. तो आप सोचो कितना सत्व रहा होगा उन श्राविकाओं में, जो आचार्य भगवंत भी उनके लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं. दैट्स इंटरेस्टिंग. आपने बीच में बात करी हाउ महावीर स्वामी was a reformer, is a reformer, and how 2500 years ago he changed how the society was thinking and the society was kind of declining, but from that point onwards it again started growing. And we've heard that there are stories that 2500 years baad the society will again start thinking in a very different way, and I think that time has started now. We have our Rishabhayan 2.0 event coming up, and if you'd like to know more about this, I think the audience should tune in on the 20th and 21st of December at Kora Kendra ground in Borivali. A lot of people would be coming in and speaking about all of these topics and reviving our culture yet again. Thank you so much, Roshit, for telling us such beautiful and inspiring stories about women and helping us rethink our usual narratives about women in tradition. And to all our listeners tuning in, thank you so much for listening till the end of the podcast. I hope you've learned something new today. Subscribe to our channel so that you don't miss any further interesting conversations. Like and share this video, and I'll see you in the next episode. Pranam. Pranam.